Hello, Yashar ji. So we will wait for 2-3 minutes and see how many people join, then we'll start. Hello, Swati ji. Finally, you have been able to join the class. And you are traveling. Okay. So let us wait 1 more minute. Okay, one more has come. किया और कितनी सच्चाई से किया, क्योंकि जो चीज बार बार आपके मन में घूमती रहती है वही आपके जीवन का स्वरूप बदल। धन का विचार बार बार किया, उसके जीवन में धन आया। Okay. So somebody was playing some kind of commentary. So let us start. So what we did yesterday was we did the 27 stars and the ruler of those stars, and also we did the Dasha periods. Is it right? Anybody remember what we did yesterday, or everybody forgot? Didn't do Dasha periods. Yeah, like Ketu 7 years, Sun 6 years, the rulership of Ketu, Ashwini, Magha, Mool, all this we did in the last phase. Fast. Namaste, sir. Namaskar, Namaskar ji. So what we are today going to do is we are going to see how houses are signified by planets. It is called a table L1 to L5 tables. All the astrologers give it a name of their choice, but the thing is same always. When we have to find an answer to a question, as I earlier said, in Krishnamurti Paddhati, we have to take minimum 3 houses because one cannot clap with one hand, one palm. So minimum 2 are required, but in KP system 3 are required, out of which 11th house is usually present in each and every question, because 11th house, as we studied earlier yesterday, I believe, that it is the house of gains. So until unless gain is promised, nothing can happen in life. That is why 11th house is uh, taken into consideration each and every time. Now, what is this table? How do we calculate it? This is the and I am sharing the horoscope now, and it will be very easy to understand with this horoscope. Everybody can see this chart. You can type yes if you don't want to unmute. Please type yes if everybody can see this horoscope. Yes. Thank you. Thank you. Okay. Now suppose somebody has asked whether when will I get married. So for marriage, we have to see houses 2, 7, 11. There are some rules in KP for each and every event. So for marriage, it is the rule is the seventh cuspal sublord should be a significator of either of houses 2, 7, 11. We'll come to that later. That is part of the main course. But you should know how it is calculated. So if you see here, everybody knows this is the ascendant, this is the first house where AS is written. Yes. Okay.
In Hindu astrology, the reading is done counterclockwise. So this is the first house, then second, then third, then fourth, fifth, sixth, and till here, 12th house. So we have to see the significators of 2, 7, 11. How are we going to do it? We see that Jupiter is placed in the second house. If we see the house table, Jupiter has gone to third house. So basically this house is also empty. Seventh house is also empty. But in the 11th house, Saturn and Rahu are placed. This is the KP house division on the right side. On the left side, this is the planet placement in the zodiac signs. Like at the time of birth of this person, Jupiter was transiting in Gemini, but in the KP chart, the placement of Jupiter has gone to third house as per the Placidus house system, which is used in KP astrology or any kind of stellar astrology, whatever be the name. The usual Sripati house foot is not used in this stellar astrology. So what we have to do is we have to make a table which is called L1 to L5. L1 means planet which is placed in the star of the occupant of a particular house. So in in this second house, no planet is placed in this particular house, so there will be no L1. The L2 level is planet in the star of occupant, then L2 is occupant. So we see that there is no occupant also here. So L1 and L2 will get cancelled. But on the second house, the sign which is falling here, you see it is written TA. That means Taurus. It is not Gemini over here, it is Taurus. Okay, this will seem very confusing, but it is very, very easy. On the first day, first time, it seems like very, very confusing thing, but it is the most easiest system to learn. Just by 2 days practice, anybody can grasp it. So the second house, you can see here on the second cusp, it is written 29 TA 44 12.93. The middle is 11 degree Gemini 18 12 77, and the end of this house is 22 Gemini 52 12.61 minutes. Second, sorry. So we have to see that what are the planets. Taurus is ruled by Venus as we discussed. So we have to see that what are the planet placed in the star of Venus. Here we see that Ketu is transiting in the star of Venus. So at the level L3, Ketu will come. And at the L4 level, the rule is the L4 table is the owner of the house. L1 is the planet in the star of occupant, L2 is occupant, L3 is planet in the star of cusp sign lord, and L4 is the cusp sign lord. So what we found here is that Ketu and Venus are the two significators of second house. We are saying this question for marriage. Now we have to see seventh house also, just like we did for this second house. Please remember or write down in copy. You can draw this horoscope and also this table here. You will get the recording so you can do the practice at home at your free time. Now, if we see seventh house, here the number written is 8. That means the sign falling on this house is Scorpio. And in the cusp chart also, Scorpio is placed. But we see that there is no planet placed in this house also. Therefore, L1, L2 will get again cancelled. Now we have to see, because Mars is the lord of the seventh house, we have to see the planet which is transiting in the star of Mars. If this is a birth chart, we will see which planet was there at the time of birth in the star of Mars. So we see here Sun, Moon, Mercury, Rahu, Jupiter, Sun, Jupiter, Rahu, Venus. So we don't see Mars over here. So L3 is also getting cancelled, and we got only one significator, which is Mars. So in second house, we found Ketu and Venus. In seventh house, we found Mars. Now comes the difficult part. In 11th house, there is Saturn and Rahu. So Moon has gone to the 12th house. Now the question will come that we have to see the L1 level. L1 is planet in the star of occupant. Who are the occupant here in this 11th house? Saturn and Rahu are the occupants. We have to see what are the planet, which are the planets which are placed in the star of Saturn and Rahu. So you see here Mars and Mercury are placed in the star of Rahu and no planet is in the star of Saturn.
So in L1, Rahu will come. In L2, Saturn and Rahu will come. L3, if we see that because the Lord is Jupiter. If we go to the houses, we see, okay, the star Lord is also changed. Aquarius is falling on the 11th house. So again, Saturn is the Lord of 11th. We saw that no planet is in the star of Saturn, so the L3 will get cancelled. L4 is Saturn. So we found out Mercury, Mars, and Saturn are the significator of 11th house. So what did we got? Ketu, and we got Venus, and we got Mars, and Saturn and Rahu. All these planets will signify when this person will get married. This is the basics, core basics of KP. If you can understand it, and it doesn't take more than 2 days, if somebody will practice, then you have learned 30% of KP. That's it. There is no need to, boggle your head a lot around KP difficult hai, any stellar astrology is difficult, because this is the core basic used in any astrology which is related to star and sub. Sir, can you explain the L1, L2, L3 and the significator? Yeah, let me do it again. L1 is the planet in the star of occupant. So we have to see for a particular house, like we discussed about marriage. So 2, 7, 11 are the houses we see for marriage. We took the signification of second house. We saw that we went to this Cuspal chart. In second house, the sign falling is Taurus. Although everybody will see that here it is written 3, which means Gemini, but it is actually Taurus. And there is no planet placed in second house. So there is no occupant. Because there is no occupant, we don't have to find the planet in the star of occupant. So L1 and L2, they both get cancelled. We will now come to L3, planet in the star of cusp sign lord. Who is the cusp sign lord? It is Venus. Is there any planet placed in the star of Venus? Ketu is in the star of Venus. So Ketu and Venus will become the significators of second house. L4 is the cusp sign lord himself. Did you got it? No. It's difficult in the first time. Okay, nobody understand it. So, Sir, could you please go in Hindi? Like, can you explain in Hindi a bit? yeah, Why is this Jupiter in the second house? It's showing Jupiter in the natal chart. yeah, okay. On the right side, if you see, it is written Rashi, right? It's Right. natal chart. So at the time of birth of a person in the zodiac, a particular planet will be transiting in a particular zodiac sign. This is that placement of that planet. But when we Placidius. divide into houses using the Placidus house division, which is an unequal house division. Okay, this is something technical which you will not understand. What the basic what you should understand is Placidus house division is some kind of different from the general horoscope which we do. So we see that Jupiter has actually come to third house. Here you see the third is written, and Jupiter is in the third house. Second house has become empty. तो हमको ये देखना है कि जो ग्रह अगर हम इसको हिंदी में बोले तो प्लैनेट इन स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट, मतलब कोई ग्रह जिस भाव में बैठा है उस ग्रह के नक्षत्र में कौन सा ग्रह है. Okay. द So फर्स्ट रूल ऑफ Jupiter. केपी इज, बिकॉज कृष्णमूर्ति पद्धति का पहला रूल है कि ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का फल देता है. प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट स्टार लॉर्ड. Star Lord. That is why planet in the star of occupant will become the first level of significator, which is the highest level of signification for a particular house. Then will come the owner himself, the planet placed in that house. Then will come the, फिर वो ग्रह आएगा जो कि उस भाव के स्वामी के नक्षत्र में है. फिर वो भाव का स्वामी आएगा. दो और होते हैं लेकिन वो किसी को समझ में नहीं आएगा अभी. बट सॉफ्टवेयर में इसके आगे दिया भी नहीं होता कोई. कंजंक्शन एंड एस्पेक्ट होता है इसके अलावा, बट वो जनरली सॉफ्टवेयर्स में देते नहीं है. तो दिस इज हाउ वी फाइंड द सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेज यूजिंग दिस L2 L5 टेबल. इसको कोई सिग्निफिकेशन टेबल बोलता है, कोई L1 L5 टेबल बोलता है, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है. बट द थिंग इज द सेम. Can you explain the what does the term means like L1,
L2, L3, L4, L5? What does the term means actually? Significates or something? Yeah, it is. See, it is the level of signification. L1 is the highest significator planet. L5 is the lowest significator planet. So we can say Signification that means here. Signification means when it will come to which planet will give the highest degree of result for a particular house. that will be L1. That will be L1. Which planet we have to consider as the lowest level of significator, that will be L5. Did you understood? Yes, sir. Sir, I Yeah. have seen in many softwares that only till L4 it's mentioned. I have not seen L5. They don't give because it is very difficult to calculate, no. Okay. Like I also know the calculation till L4 only. But L5 is their conjunction and aspect, and they are very, very important. In South, they do a lot of thing on aspects. And in fact, if you will read more and more, then you will understand that aspects play a very vital role in predictions. Aspects actually changes everything. Yes, yes, they literally change everything. So, did you got, sir? आपको समझ में आया जिन्होंने Yeah, पूछा था yeah, अभी? I got the meaning, but like L1, like whether it is the house lord or the cusp lord, or whether the L2 means like that part I didn't understand. Okay. So this table simply means L1 means planet in the star of occupant. First, we have to see while judging the signification of a house, what we have to say is which planet is going to give the highest level of signification for an event to take place in a particular person's life when he has come to ask a question to us. So when we are judging the power of a house, which planet is going to be the most crucial? It will be the L1 level planet, which is placed in the star of a planet which is placed in that particular house. Like, okay, let us say third house. Jupiter is placed in the third house. It will not be the strongest significator, but a planet which is placed in the star of Jupiter. So you see here Venus, Saturn is in the star of Jupiter. Rahu is in the star of Jupiter. And today Jupiter is in the star of Jupiter. So Jupiter, these planets, Venus, this Saturn and Rahu will become stronger than Jupiter. Had this Jupiter have been in some other planet star, but here Jupiter, Venus, Jupiter, Saturn and Rahu will become the first level of uh, giving the result for that particular third house, for the signification or the traits of the third house. At the level 2, at second level, Jupiter will come because it is placed in that house. It's something like, you own a particular house, and we can understand it like tenant and lordship and all that. If you go by that set of mind, it is the same thing here. The L3 level is the ruler of the house in the house division, which cusp is falling on that particular house. That will be the level 3, which means simply means that it will come next to L1, L2, then L3 in terms of giving the result of that particular house. If we see here on the third house, Gemini is falling, although you will see here that Cancer is here, but on the third house, Gemini is falling. So we will have to take a planet which is placed in the star of Mercury. Moon is in the star of Mercury. So at L3 level, Moon will come, L4 will be Mercury. Did you somewhat understood? Yeah, somewhat clear. Tell me what is not clear. Actually, that terms which are there, that cusp and all, that basic terms actually. Cusp simply means house, that's all. House. Okay. It is because Krishnamurti used cusp, so because we have been reading KP readers and all the KP, so वो मुंह पे आ गया है cusp. Otherwise, cusp, bhav, house are the same thing. Okay. Is it somewhat more clear now? Yeah. Where are you now finding difficulty? So maybe in the next example, like I'll try to understand. If there is any doubt, I'll answer. Sure. सर सर मेरा एक डाउट है सर, जैसे ये आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जगन्नाथ हो रहा, तो इसमें इतना क्लियरिटी नहीं दिया हुआ है। जैसे मैंने अदर सॉफ्टवेयर यूज किए, जैसे एस्ट्रोसेज हो गया, केपी लॉजी हो, केपी नॉक्स हो गया और केपी लॉजी 10 हो गया,
उनमें बिल्कुल क्लियरली मेंशन है, तो वो इनके लिए इजी हो जाएगा थोड़ा समझने के लिए। जैसे इनको, जैसे बहुत ज़्यादा बिगनर्स में है, तो इनको ये They समझ will में not नहीं। understand anything in that. ओके और देन why I एक, use J हो रहा है is because J हो रहा में आपको थोड़ा अपना ब्रेन यूज करना पड़ता है. If you will have a see, all the softwares are made by developers या which have a particular set of data to feed and then the डेटा software टू is फिट। generated. एस्ट्रोसेज का सॉफ्टवेयर गलत है, उसको मत यूज करना है. वर्कड विद एस्ट्रोसेज इन नोएडा in 2015 with them in house, so I know that they have wrong latitude longitudes, and because the person they hired to feed that latitude longitude did mistakes, but they never had the chance to clear it because astrosage is a very big site. सर इवन दैट एसपी कूलर्स ऑफ हैविंग दैट ऐप, दैट वो मैंने आल्सो। कभी यूज ही नहीं करा. वो किताब एक बार पढ़ के फिर मैंने नमस्ते कर ली. इट्स नॉट वर्थ. नहीं नहीं, मैं सब सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ। कुल्लर का सॉफ्टवेयर है मेरे पास था. आई मीन आई हैड ऑल द सॉफ्टवेयर. ट्रू एस्ट्रोलॉजी एक जबलपुर वालों ने बनाया था. ट्रू एस्ट्रोलॉजी था मेरे पास. हाँ, आई जबलपुर हैड एस्ट्रो। पाराशर लाइट. आई हैड देयर वाज वन एस्ट्रो ऑफिस करके सर 2014 में सॉफ्टवेयर आया था. सर, तो इसमें जो आपने आइनामास यूज किया वो केपी ओल्ड या केपी न्यू यूज किया है? कोई भी ओल्ड. केपी ओल्ड। आई यूज अच्छा, केपी ओल्ड ओनली. तो कृष्णमूर्ति पद्धति जी ने तो शायद केपी न्यू बताया था ना उसमें। कृष्णामूर्ति जी was केपी ओल्ड. खुल्लर केम विद एन एनांशा. ही स्टार्टेड कॉलिंग इट केपी न्यू. ओके ओके। नहीं, क्योंकि मैंने वो थोड़ा सा उसमें मेरा देखा है कि मैंने जो आर्क का डिफरेंस आता है, आर्क परसेंटेज का, तो वो टाइमिंग में डिफरेंस दे रहा है थोड़ा सा। वो तो तो बहुत मैं, डिफरेंस आता है. हाँ तो मैंने अगर वही, आप केपी ओल्ड और केपी न्यू लोगे तो भी डिफरेंस आएगा. अगर आप लहरी एनांश ले लोगे तो बहुत डिफरेंस आ जाता वो है. तो केपी कूलर में तो वो बहुत पूरा, मतलब मेरे को बर्थ टाइम आगे करने के लिए बोल दे रहा है, और हम्म. केपी ओल्ड में तो वो पीछे करने के लिए बोल दे रहा है। जितना सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंसी रहेगी उतना ही हम नकारा हो जाएंगे. द ब्रेन इज गिवन बाय गॉड टू यूज. सो वेन एवर आई टीच टेक क्लासेस नाउ, एक ज्योतिष पोर्टल करके है जो मेरे को अच्छा लगता है आजकल. सो उसको मैं यूज़ कर लेता हूँ कि जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसमें पूरा सिग्निफिकेशन लेट मी जस्ट डू इट. तो वो हाँ बड़ा सर वो, सिंप्लीफाइड है. उसका इंटरफेस बहुत ही सिंप्लीफाइड है. हाँ नहीं, बाकी वो जो कैलकुलेशन है L1 L2 L3 का, तो वो थोड़ा सा पैनिंग, मतलब पेन में हो जाए या टेबल ब्लैक बोर्ड पे हो जाए, तो व्हाइट बोर्ड पे तो वो बहुत ईजी हो जाता है। वो क्योंकि मैंने भी ऐसे ही समझा है, तो वो मेरे लिए इजी हो जाता है समझ में कि L3 कैसे निकाला। क्योंकि जो फर्स्ट हाउस जो आपने बोला L1 बोला, तो वो जो प्लेनेट वहाँ प्लेस्ड है उसका नक्षत्र लॉर्ड आता है, तो वो नक्षत्र लॉर्ड वो कौन सा प्लेनेट आता है तो फिर वहाँ लिखा जाता है, फिर वो ऐसे इजी बन जाता है। सर नगेशन एक्सप्लेन करेंगे क्या, मतलब अभी आप इसी आज आज की क्लास में? ना ना ना, इसमें तो खाली ये बेसिक्स जो है वही सब थे ना. अच्छा ठीक है। नहीं, वो पर्सनल मेरा था कि उसमें नगेशन में डाउट होता है, तो मैं इसलिए आपसे पूछना था। Okay, now this is a horoscope. Everybody can see it. यस सर। हम्म, हाँ सर, ये वाले में L1 L3 ये रहा। अब यहाँ पे देखिए ये राशि चार्ट दिया हुआ है इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जिसने कि दो कार खरीदी थी. एक कार खरीदी थी. आई वॉज जस्ट राइटिंग डाउन परचेज ऑफ कार. तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हम 4, 11, 12 को देखते हैं बिकॉज द हाउसेज नीडेड फॉर द परचेज ऑफ कार आर 4 and 11, 4, 11, 12. अब यहाँ पे देखिए दिस विल बी इजी फॉर एवरीबडी. यहाँ कस्प दिया हुआ है पहला दूसरा तीसरा. उसके बाद यहाँ पे L1 L2 L3 L4 सिग्निफिकेशन दिया हुआ है. सो वन कैन वेरी इजीली जज कि अगर हमको चौथे घर को देखना है तो यहाँ पे L4 में वीनस आ रहा है. व्हाट डज इट मीन? अगर हम देखें यहाँ पे फोर्थ हाउस पे तुला राशि आ रही है. लिब्रा इज फॉलिंग ऑन द फोर्थ हाउस. इफ वी सी इन द प्लैनेट्स, एनी प्लैनेट इन स्टार ऑफ वीनस, देर इज नो प्लैनेट इन स्टार ऑफ वीनस. और यहाँ पे कोई ऑक्यूपेंट नहीं है इसलिए L1 L2 गॉट कैंसल्ड. L3 ऑल्सो गेट कैंसल्ड क्योंकि वीनस के स्टार में कोई प्लैनेट नहीं है. दैट इज वाई इन द फोर्थ हाउस L4 पे सिर्फ वीनस को यस यस। रखा गया है. विच मीन्स कि सिर्फ वीनस ही एकमात्र चौथे घर का सिग्निफिकेटर है. अगर ये आदमी जब गाड़ी खरीदने जाएगा तो वीनस कहीं ना कहीं उसमें रोल प्ले कर सकता है. इसका इतना सा ही मतलब है बस. तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं वीनस टैलेंटेड टैलेंटेड हो गया, अनटैलेंटेड सॉरी। अनटेनेटेड है. हाँ अनटैलेंटेड। उसके लिए बहुत हल्ला करते हैं लोग. अनटेनेटेड वो इट मीन्स नथिंग. आई मीन पीपल शाउट फॉर नो रीजन.
वो इट इज यूजलेस, आई मीन इतना कोई उसका फर्क नहीं पड़ता जितना लोग यूट्यूब पे बोलते हैं आके वो नहीं मेरा क्योंकि ग्रुप है उसमें भी बड़ा शुरू में लोगों ने कहा था अनटेनेटेड, लेकिन बाद में वो हो गए सब, क्योंकि इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता उसका। जब पीरियड आएगा देन इट इज गोइंग टू गिव इफेक्ट ना, सारी जिंदगी थोड़ी देगा वो, तो डिपेंड्स अपॉन डीपीए विच यू आर रनिंग थ्रू। अल्टीमेटली द होल क्रुक्स इज कि आपका दशा क्या चल रहा है, दशा में अगर वो चीज आ रही है तो उसका मतलब है, अदरवाइज इट इज यूजलेस। सर लेकिन फिर भी वो अंतरदशा और भुक्ति लॉट के थ्रू तो वो रिजल्ट देता ही है थोड़े थोड़े। मतलब दशा कुछ भी चल रही हो, जैसे जुपिटर की दशा चल रही है, लेकिन उसके अंदर जो भी आ रहा है प्लेनेट वो कहीं ना कहीं तो मैं करेक्ट। वही कह रहा हूँ, डीबीए दशा भुक्ति अंतर सूक्ष्म प्राण जो भी दशा आएगी उसमें उसका रिजल्ट कम होता जाएगा ना, जब वो प्लैनेट की हाँ खुद की महादशा आएगी देन इट विल बी तो समथिंग स्ट्रांग, तो डिफरेंट। स्ट्रांग हो जाओ। इट्स समथिंग लाइक एक मूवी में आपको एज एन एक्टर हीरो कास्ट किया गया है या सब एक्टर कास्ट किया गया है या विलेन कास्ट किया गया है वो या मैटर क्या नहीं। कास्ट किया गया है, इट डिपेंड्स लाइक दैट ओनली। सो दे आर प्लेइंग रोल्स रिलेटेड टू हाउसेज एंड आवर डेस्टिनी। कोई भी प्लैनेट कुंडली में खराब नहीं होता, कोई भी अच्छा नहीं होता। जो हमारे अच्छे हाउसेज से जुड़ा हुआ है वो हमारे लिए अच्छा है, जो हमारे खराब हाउसेज से जुड़ा है वो हमारे लिए खराब है, सिंपल एज दैट। यस चौगले जी, यू वर आस्किंग समथिंग। नो सर। ओके, सो यहाँ पे हम फोर्थ हाउस को फिर से देखते हैं, L1 L2 L3 L4, इट इज वेरी मच क्लियर, विच सिंपली मीन्स L1 means planet in the star of occupant. So we see here that there is no occupant in this fourth house. Therefore, because there is no planet present, there will be no planet in the star of that planet. So L1, L2 got cancelled. Now L3 is planet in the star of cusp sign lord. Cusp simply means house. वो जो भाव पे राशि आ रही है उस राशि के स्वामी के नक्षत्र में अगर कोई प्लानेट है तो हम उस प्लानेट को एज ए वन ऑफ द सिग्निफिकेटर लेंगे। लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि वीनस के नक्षत्र में कोई भी ग्रह नहीं है। फिर हम चौथे लेवल पे लेते हैं कि जो उस घर का स्वामी है वो है शुक्र। तो शुक्र चौथे लेवल पे आ गया। इसका सिर्फ इतना सा मतलब है कि अगर L1 में या L2 में कोई प्लानिट होता उसके पास ज़्यादा शक्ति होती चौथे घर के जो फल होते हैं उनको देने की, बजाय वीनस के जो कि उसका मालिक है। आपका आपने अपना घर किराए पे दिया हुआ है तो कोई आदमी आपके घर में आएगा तो जो आपका किराएदार है ही इज मोर इन पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। अगर आप बॉम्बे रहते हो आपने घर दिल्ली में लिया हुआ है तो कोई आपके घर पे आया तो आपके पास कुछ डिफेंस नहीं है, आके उसने आपके घर पे हमला कर दिया या आपके टेनेंट से मिलने आ गया 4 दिन रुक गया, यू कैन नॉट से नो टू हिम बिकॉज यू डोंट इवन नो व्हाट इज हैपनिंग। दिस इज हाउ दिस थिंग हैपन्स। ऑक्यूपेंट इज स्ट्रॉन्गर देन द ओनर, केपी का सिंपल रूल है। जो वहां बैठा है भैया उसके पास ज्यादा शक्ति है, और जो उसके नक्षत्र में बैठा है उसके पास उससे भी ज्यादा शक्ति है। अब हम देखते हैं 11th हाउस को। वी सी दैट जुपिटर इज प्लेस्ड इन द 11th हाउस विच इज वन ऑफ द हाउस, एज आई सेड कि हमको हर क्वेश्चन के लिए 11th हाउस को देखना ही होगा, हर अच्छे क्वेश्चन के लिए। अब हम देखें 11th हाउस को तो यहाँ पे आप देखेंगे 11th में आ गया L1 L2 में आप देखेंगे जुपिटर लिखा हुआ है, उसके बाद फिर L3 और L4 में वीनस है, क्योंकि यहाँ पे जो भाव का स्वामी है वो शुक्र है। ये कर्क असेंडेंट है इसलिए वीनस के पास रूलिंग आती है 411 की। जुपिटर जो है उसके स्टार में भी कोई प्लानिट नहीं होगा इसीलिए सिर्फ जुपिटर लिखा हुआ है, तो प्लानिट साइन स्टार। सो वी सी दैट जुपिटर के स्टार में भी कोई प्लानिट नहीं है इसीलिए L2 लेवल पे जुपिटर आ गया। अब जब ये व्यक्ति गाड़ी लेने जाएगा तो हमको ये पता है कि भाई चौथे घर का जो सिग्निफिकेटर है वो शुक्र है, 11वें घर का जो सिग्निफिकेटर है वो गुरु और शुक्र है, और अब हमको देखना है 12वां घर। 12वें घर का लॉर्ड कौन है? मर्क्यूरी। यहाँ 3 नंबर डला हुआ विच मीन्स जेमिनाई विच मीन्स मर्क्यूरी। L3 में यहाँ क्या लिखा हुआ है? वीनस मार्स केतु, दैट मीन्स ये तीनों मर्क्यूरी के स्टार में है। लेट अस सी है कि नहीं है। केतु इज इन द स्टार ऑफ मर्क्यूरी, Venus is in the star of Mercury, and which one was that? Mars is in the star of Mercury. In fact, Mars is in the star sub of Mercury. Ketu is also in the star sub of Mercury, almost same degrees. So यहाँ पे इसीलिए दिया गया कि L3 में ये तीनों सिग्निफिकेटर बनेंगे, और चौथा जो ग्रह सिग्निफिकेटर है L4 लेवल का वो बुध है।
उस घर का मालिक। उस घर का जो मालिक है। और ये तो तीनों दैट जो इज है वाई ये जब ये आदमी कार खरीदनी होगी इसको, ये प्लैनेट्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और ये जो वीनस मार्स और केतु है ये मतलब इनका नक्षत्र लॉर्ड मरकरी बना हुआ है। हम्म। तभी अपन ने L3 में लिखा ना। तभी ऊपर L3 में लिखा है, प्लैनेट इन द स्टार ऑफ कस्ट साइन लॉर्ड, ठीक। भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। और सर ऑक्यूपेंट और एक बार L1 L2 और बता दीजिए ना। एक बार ऑक्यूपेंट और ओनर वाला। ओनर वाला तो मैं समझ में आ गया कि L4 हो गया, खुद जो ओनर है उस घर का। एक बार L1 L2 और बता दीजिए। थर्ड हाउस में देखिए राहु बैठा हुआ है। हाँ। L1 में लिखा हुआ है जुपिटर। जुपिटर। अब जुपिटर देखिए। जुपिटर का नक्षत्र स्वामी राहु है, और सब हम्म। लॉर्ड भी स्वाहु राहु है, सब लॉर्ड केतु है। तो केतु है। हमने ये देखा कि जो थर्ड हाउस है वहाँ राहु बैठा हुआ है। अगर हम देखने जाएंगे कि भैया थर्ड हाउस के लिए कौन सा ग्रह सबसे पहले फल देने में सक्षम है, तो जो तो राहु। हमारा रूल है प्लैनेट इन द स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट, किसी भाव में बैठे नक्षत्र के नक्षत्र में बैठा हुआ ग्रह। तो क्योंकि यहाँ पे राहु बैठा हुआ है, हमने देखा कि गुरु जो है राहु के नक्षत्र में है, तो थर्ड हाउस का जो सबसे स्ट्रॉन्ग सिग्निफिकेटर होगा वो जुपिटर होगा। गुरु। समझ और गया। फिर L2 लेवल पे राहु आएगा जो खुद वहाँ बैठा हुआ है। खुद वहां बैठा उसके हुआ है। बाद L3 और L4, तो क्योंकि लॉर्ड मर्क्यूरी है तो हमने देखा वीनस मार्स केतु, वीनस मार्स केतु दोनों आएंगे और मर्क्यूरी आएगा। ठीक है समझ गया। किस किस को कुछ भी समझ में नहीं आया प्लीज? थोड़ा थोड़ा। थोड़ा थोड़ा आया? ग्रेट, आई मीन आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग थोड़ा थोड़ा भी आएगा फर्स्ट डे पे। आई मीन यू आर गेटिंग इट, आई मीन जो मैं बोलना चाह रहा हूँ या जो कृष्णमूर्ति जी ने 1960 में कहा था, यू आर गेटिंग इट। दिस इज हाउ वी जज द सिग्निफिकेशन ऑफ हाउसेस। सर जैसे अब आपने जैसे ये बताया कि अपन जैसे L1 L2 L3 L4, तो L1 के सबसे स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आएंगे पहले। क्योंकि जुपिटर जैसे अगर जुपिटर L3 में थर्ड हाउस का, तो जुपिटर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देगा। अब जुपिटर की जो महादशा होती है 16 साल की होती है। तो 16 साल में अपने को जुपिटर एक ही थर्ड हाउस के रिजल्ट सबसे स्ट्रॉन्ग देगा, देन उसके बाद अदर अदर हाउसेस के रिजल्ट देगा। Then we will see star lord of Jupiter. The rule of KP is planet will give the result of its star lord. नक्षत्र। यस सर। तो जुपिटर का स्टार लॉर्ड राहु है, एंड देन वी राहु विल है। सी द सब लॉर्ड ऑफ जुपिटर एंड द स्टार लॉर्ड ऑफ द सब लॉर्ड ऑफ जुपिटर। ओके सो लाइक। एस्पेक्ट्स ऑफ जुपिटर, कंजंक्शन ऑफ जुपिटर, एस्पेक्ट ऑन जुपिटर। अच्छा। तो मतलब जो नक्षत्र लॉर्ड है और सब लॉर्ड है, सब लॉर्ड का भी नक्षत्र लॉर्ड देखना पड़ता है। जो आपका 4 स्टेप थ्योरी है वो यही तो है, और क्या। सब लॉर्ड का भी स्टार लॉर्ड इज नाउ दैट गाय सुनील गोंधालेकर ही मेड इट सच ए फर्स्ट कि मैंने इन्वेंट करी है 4 स्टेप, बट हम जब केपी शुरू से करते हैं व्हाट वी आर सीइंग इज कस्पल सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड ही तो देख रहे हैं हम, 4 स्टेप तो कर ही रहे हैं शुरू से। हाँ नहीं, क्योंकि मेरा मतलब मुझे ये नहीं पता था कि जैसे अपन सब लॉर्ड देखा, मतलब जुपिटर राहु है उसका, फिर राहु सब लॉर्ड, तो राहु का भी नक्षत्र लॉर्ड देखना ये मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा कैलकुलेशन हमेशा हमारा मतलब मैंने जहां तक सीखा है जुपिटर राहु और फिर उसका सब लॉर्ड, एंड देन सब लॉर्ड डिसाइड करता है कि वेदर इवेंट होगा या नहीं होगा, डिनायल होगा या अप्रूवल होगा। सब लॉर्ड इज द डिसाइडिंग फैक्टर नो डाउट, बट हम्म। व्हेन इन केस ऑफ कंफ्यूजन जस्ट सी द स्टार लॉर्ड ऑफ सब लॉर्ड। ओके नहीं जस्ट तो सी द आपके पास क्या लॉर्ड ऑफ सब ऑप्शन है लॉर्ड। रूलिंग प्लैनेट लेने का। हाँ। तो गोंधालेकर जी वांटेड टू डिक्रीज द यूज ऑफ रूलिंग प्लैनेट, तो उनके मन में ये आया कि मैं इसका सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड भी लेके देखूं, एंड ही गॉट वेरी गुड रिजल्ट आउट ऑफ इट। तो जब ये नहीं तो समझ में आ रहा है, व्हेन यू आर गेटिंग कंफ्यूज, कृष्णमूर्ति जी ऑलवेज यूज्ड रूलिंग प्लैनेट्स, हसबे जी ऑलवेज यूज्ड रूलिंग प्लैनेट्स, साहसने जी ऑलवेज यूज्ड रूलिंग प्लैनेट्स। At some point of time, Sashnaji used the star lord of the cuspal sublord or planetary sublord, and both are correct because the whole purpose of astrology is to give the right result to the asker. हम खाली उसको ये बोले कि हमने हमको देखो तुम्हारा L1 ये है, L4 ये है, ऐसा होगा, तो उसको उससे मतलब नहीं है। सर दिस इज ये जो वर्ड्स हैं, ये जो टर्म्स हैं, स्टार लॉर्ड एंड ऑल दिस, जो बहुत ज़्यादा बिगनर्स हैं तो वो थोड़ा इसको कैच करने में उनको थोड़ा इशू इशू होगा। अब जैसे हमने रीड किया हुआ है तो हमको स्टार लॉर्ड एंड ऑक्यूपेंट्स ये थोड़ा आता है, बट हम लोग इतना इंग्लिश में नहीं किए हैं, तो जैसे आप इंग्लिश में बोला तो वो थोड़ा सा रहता है। बाकी जो एकदम न्यू है ऐसा तो उनको थोड़ा सा नहीं टिपिकल नहीं, होगा। अभी आऊंगा उस पर भी ना, स्टार लॉर्ड पहले ये रूल हो गया। असल में हम्म। स्टार लॉर्ड समझाऊंगा तो फिर वो उसके बाद फिर कस्पल सब लॉर्ड भी आएगा ना स्टार लॉर्ड के बाद, तो वो एक हाँ साथ हाँ।
सो अब इसको हमने देखा कि हम कैसे एक पर्टिकुलर भाव का जो सिग्निफिकेशन है, एक पर्टिकुलर भाव के लिए कौन सा ग्रह सबसे ज़्यादा फल देने में सक्षम होता है, ये हमने L1 से L4 का टेबल देखा और ये जाना कि ये प्लानिट जो है ये सबसे ज़्यादा सक्षम है किसी भी घटना के लिए रिजल्ट देने में। अब इसका, सर, या एक प्लीज। डाउट है यहाँ पे। हाँ। यहाँ पे लाइक फॉर एग्जांपल इन कस्ट नंबर 3 it is हम्म written L1 is Jupiter, हम्म but actually in the Jupiter is lying in 11th house here. So how does Jupiter came in as an L1? L1? L1 मीन्स प्लानेट इन द स्टार ऑफ ऑक्यूपेंट, मतलब तीसरे घर में जो ग्रह बैठा है उस ग्रह का नक्षत्र में नक्षत्र। कौन सा ग्रह है। अगर Okay, हम यहाँ पे देखें प्लैनेट्स को तो गुरु जो है वो राहु के नक्षत्र में है। गुरु पूरी कुंडली में कहीं भी हो सकता है, okay, okay, okay. लेकिन उसका जो नक्षत्र स्वामी है वो राहु है, वो थर्ड में बैठा है। तो गुरु राहु से पहले थर्ड हाउस का रिजल्ट देगा। Okay. It is the nakshatra lord of Rahu, where Rahu is lying. राहु इज द नक्षत्र लॉर्ड ऑफ जुपिटर। यू सी जुपिटर इज हियर रिटर्न, जुपिटर की इतनी डिग्री है, हियर इट इज रिटर्न STL, दैट मीन्स स्टार लॉर्ड। तो गुरु का जो स्टार लॉर्ड है इट इज राहु, हियर इट इज रिटर्न SBL, दैट मीन्स सब लॉर्ड। जुपिटर का जो सब लॉर्ड है वो राहु है। SSL ही सब लॉर्ड खुल्लर जी वाला, तो वो केतु है। तो सब लॉर्ड यूज होता है ऐसा नहीं है नहीं होता, बट इन सम कंडीशन बहुत बार यूज करना पड़ता है। जैसे यहाँ हमको सब लॉर्ड लेना पड़ेगा अगर हम प्रेडिक्शन पे जाएंगे, विच इज गुड दैट वी आर नॉट गोइंग टुडे। एंड ये सिंपल सी लॉजिक है, ये कृष्णामूर्ति जी ने बहुत समय दिया इसको समझने के लिए। इसके पीछे की कहानी ये है कि ही वॉज ए साउथ इंडियन ब्राह्मण विच आर बाय बर्थ एस्ट्रोलॉजर्स। ही वॉज ए फ्रॉम ए वेरी एजुकेटेड फैमिली, ही वॉज ए प्रोफेसर इन ए कॉलेज इन चेन्नई। ही यूज टू गिव प्रोडिक्शंस और उनके प्रोडिक्शंस गलत होते थे और बहुत ज़्यादा गलत होते थे। देन ही स्टार्टेड थिंकिंग कि व्हाट एम आई मिसिंग, मुझसे क्या गलत हो रहा है। सो ही केम टू नो कि उन्होंने बहुत बार इसको अपने कॉलेज में अपने कलीग्स पे स्टूडेंट्स पे प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करके देखा, आस पड़ोस में इधर उधर। उन्होंने देखा कि ग्रह का जो नक्षत्र स्वामी है ग्रह सबसे पहले उसका फल देता है। सो दिस बिकेम द बेसिक पिलर ऑफ कृष्णामूर्ति पद्धति और एनी स्टेलर पद्धति, दैट प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट स्टार लॉर्ड। ग्रह का जो नक्षत्र स्वामी है ग्रह सबसे पहले उसका फल देगा। अब उनके जो प्रोडिक्शन थे ऐसा करने से बहुत इम्प्रूव होने लगे कि उन्होंने देखा कि एक पर्टिकुलर प्लैनेट का स्टार लॉर्ड एक प्लैनेट है, वो एक हाउस में बैठा है, तो वो प्रेडिक्ट करते थे कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन उसके बाद भी उनका जो प्रोडिक्शन था वो काफ़ी उनके लिए सेटिस्फैक्ट्री नहीं हो रहा था। सो व्हाट ही थॉट समथिंग एल्स, कि अब हम चलो वो स्टार लॉर्ड ही कवर करते हैं। सो आई विल शेयर द अदर चार्ट विच विल बी इजी। Let us come to this chart. Everybody can see this one? Yes. Okay. So here you see Jupiter is placed in Gemini, right? Everybody can see this? यस सर। कोई बोल तो दीजिए ना, because I'm Yes, sir. asking, so I don't know. सर सर बिल्कुल बिल्कुल। नहीं वो दिख रहा है, ये सेम चार्ट लगाया आपने पहले से जो हाँ था। वही तो फर्क क्या पड़ता है उससे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है, planet are always in motion, the earth is in motion, sun is in motion, moon is in motion, everything is in motion. That is the basic principle of Einstein. E is equal to mc square जो है, that is everything is moving, nothing is stationary. तो हर प्लानिट एक पर्टिकुलर जोडियाक में घूम रहा है, मतलब बाहर घूम रहा है। तो जोडियाक को बांटा गया है, एक सर्कल 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री के जब हम 12 हिस्से करते हैं तो 30 डिग्री का हमको एक हिस्सा मिलता है, जिसको कि बहुत पहले सालों हजारों साल पहले इंडियंस ने भी और वेस्ट में भी बांटा गया। और आयरॉनिकली सब कुछ सेम है कि उन्होंने भी नाम वही रखे और उनके जो ट्रेड्स हैं सिग्निफिकेशन है वही रखे हैं पर्टिकुलर साइन के। इनफैक्ट द सिग्निफिकेशन ऑफ प्लैनेट्स आर ऑल्सो सेम। अब किसने किससे चोरी किया दैट वी कैन नॉट नो। वेस्ट ने ईस्ट से की, ईस्ट ने वेस्ट से,
वो तो हम नहीं जान सकते, मोस्ट लाइकली इंडिया ने ही सबको सब कुछ दिया है पुराने काल से। तो अब क्या हो रहा है कि हमने कल पढ़े थे 27 स्टार्स। दीज स्टार्स आर एक्चुअली प्रेजेंट इन आवर सोलर सिस्टम। इनके इंग्लिश नाम है, एंड यू कैन सी देम बाय टेलीस्कोप। Why are they given a particular name? A constellation is a set of stars which represents a particular image. Like we see Aries, तो उसमें एक भेड़ का शेप आता है, sheep का शेप आता है। तो when you will see the constellation Aries, you can, if you draw the lines on that particular image, you will see a sheep. That is why they have been named after whatever they are looking. हिंदू हिंदुओं में कहावत है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। दैट मीन्स जो भी हमारे अंदर है वही बाहर है। द होल यूनिवर्स इज इन अस एंड वी आर पार्ट ऑफ द यूनिवर्स। इसीलिए इट इज अज्यूम्ड कि उसका हमारे ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। नाउ एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। दे आर 2.25 कॉन्स्टिलेशन इन ए पर्टिकुलर साइन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 30। गुंजन जी, इट इज रियली वेरी इजी। ओके, इट इज क्लास 2 सब्जेक्ट, नथिंग Yes. टू वरी। सो हर राशि के अंदर कौन सा नक्षत्र होता है, वो सारा डिवीजन मैंने अपने नोट्स में दिया हुआ, यू कैन गो थ्रू इट। जैसे पहली राशि है मेष, उसमें नक्षत्र सबसे पहला जो स्टार शुरू होता है दैट इज अश्वनी, केतु का स्टार। उसके बाद आता है भरणी विच इज वीनस भरणी स्टार, नक्षत्र। देन कृतिका विच इज द स्टार ऑफ सन। तो आपके जन्म के समय एक पर्टिकुलर प्लैनेट उस जोडियक में, इस कंप्लीट जोडियक में किस पॉइंट पे ट्रांजिट कर रहा था, वो हमारा बर्थ का कुंडली है। एक एक दो दो डिग्री से पूरा हॉरोस्कोप चेंज हो जाता है। केपी में तो सेकंड्स, मेरा खुद की कुंडली 40 सेकंड में चेंज हो जाती है। तो जब मेरी 5 सेकंड पे। इसीलिए केपी में टाइम का बड़ा वो रहता है। इसीलिए केपी में होरेरी आई कि होरेरी में टाइम की हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज टाइम कैन नॉट बी रॉन्ग। बट कोरेरी तो बात की बात है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि कोई ग्रह अगर किसी राशि में 25 डिग्री तक है, टेक दिस टेक दिस बॉटल, ओके, दिस इज 30 डिग्रीज। जीरो इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, 30 degrees ending here. If a planet is placed somewhere here, we can assume that it will be around 3-4 degrees, right? Because there is 30. Hmm. Now we have seen 3 constellations. Suppose this is Aries. So Ketu will rule this much of part, then the Bharni will rule this much of part, and then the rest part will be ruled by Kritika. This is how constellations are divided in a particular sign. So if a planet is of 3 degree, each constellation is having a span of 13 degree 20 minutes. Out of that 13 degree 20 minutes, each constellation is having a, we can say, sub span of 3 degree 20 minutes, 4 sub spans, और हिंदी में उसको पद बोलते हैं, इंग्लिश में भी उसको पद ही यूज किया जाता है। और 3 डिग्री 20 मिनट्स के 4 टुकड़े एक नक्षत्र के होते हैं। और 13 डिग्री 20 मिनट इज द टोटल स्पैन ऑफ ए कॉन्स्टिलेशन। 3 डिग्री 20 मिनट को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल कम 13 डिग्री 20 मिनट आ जाएगा। तो अगर कोई ग्रह किसी पर्टिकुलर राशि में किसी पर्टिकुलर डिग्री पे है, तो वहाँ वो उसका एक पर्टिकुलर स्टार के अंदर होगा, उस पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर स्टार की इन्फ्लुएंस आएगी। तो वो जो स्टार का लॉर्ड है, जो कि हमने कल पढ़े थे, आई फॉरगॉट टू टेल यू कि एक बार उसको पढ़ लेना। आई थॉट मे बी आज देखेंगे किसने पढ़ा किसने नहीं, तो इट सीम्स किसी ने नहीं पढ़ा। सो वो जो पर्टिकुलर स्टार के लॉर्ड होते हैं, दे विल बिकम द स्टार लॉर्ड बिकॉज द प्लैनेट इज प्लेस्ड इन दैट पर्टिकुलर part of the zodiac or a zodiac sign where a particular star is having an influence. Sir, उस we स्टार can say का the जो degree. लॉर्ड होगा that will become the star lord. Sir, we can also say that that particular degree that that planet is having will become the nakshatra lord of that planet. हाँ, वो नक्षत्र लॉर्ड हो गया ना। हाँ, जैसे जुपिटर पे बैठा है अपने, समझ लीजिए कि 23 डिग्री पे, तो वो जेमिनाई में जो 23 डिग्री के बाद जो नक्षत्र आता है उसका वो नक्षत्र 23 लॉर्ड बन। डिग्री पे जो स्टार आएगा वो उसका स्टार हाँ लॉर्ड हो गया। हाँ, वैसे। दिस इज द सिंपल फंडा ऑफ स्टार लॉर्ड। जो टर्म यूज करते हैं सब लोग, केपी एस्ट्रोलॉजर हो गए, कोई भी स्टेलर एस्ट्रोलॉजर हो गए,
कि इसका स्टार लॉर्ड ये है, स्टार लॉर्ड ये, दे आर, इनके क्या, व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि एट द टाइम ऑफ बर्थ this particular planet which I am talking about in your horoscope, it was at a particular degree where there was a influence of a particular constellation, the lord of which is a particular star lord. So Jupiter will be in a particular star and the star lord will be the planet जिसका कि Jupiter सबसे पहले रिजल्ट देगा. Is it clear? सर Is क्लियर it है? clear? Please say. I mean, नहीं हो तो we will do it more. I will need to go over it again on my own first. सोनिया जी, यशार्थ जी, स्वाति जी, गौरव जी, is it clear or not clear? That's clear. जी जी, She आई said I कुडंट हियर guess. यू. अच्छा, यू आर ए ट्रैवलिंग ऑल्सो ना, तो आपकी वॉइस तो ब्रेक होगी. यस, Sir, ओके, clear है. फाइन 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 फाइन, थैंक यू. नाउ वी शुड विल सी द रिवर्स ऑफ व्हाट वी हैव डन. अभी हमने ये देखा था कि किसी पर्टिकुलर भाव के लिए हम कैसे ग्रहों का सिग्निफिकेशन निकालते हैं, जैसे कि कौन सा ग्रह किस भाव के लिए सबसे अच्छा सिग्निफिकेशन देगा. ओके ओके, अब हम इसका ठीक उल्टा करेंगे कि कौन सा ग्रह किस भाव के लिए सिग्निफिकेशन देगा. हम प्लैनेट्स को पकड़ेंगे, प्लैनेट के नक्षत्र को देखेंगे, और हम देखेंगे कि जब किसी व्यक्ति के जीवन में कोई दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा चल रही है, तो वो क्या रिजल्ट दे सकती है. लेट अस टेक दिस हॉरोस्कोप. ये दिख रहा है अभी? चलिए, इसमें हम वीनस को लेते हैं. वीनस की जब दशा आएगी या अंतर आएगा या प्रत्यंतर आएगा, तो वीनस क्या क्या रिजल्ट देगा और किसका रिजल्ट पहले देगा. दिस इज विजिबल राइट टू एवरीबडी. यस सर. यहाँ पे हमने देखा कि वीनस का जो नक्षत्र लॉर्ड है वो सन है. नाउ एवरीबडी मस्ट हैव अंडरस्टूड व्हाट इज नक्षत्र लॉर्ड. वीनस लियो में है. वीनस की जो डिग्री है वो 28 डिग्री है, मतलब लियो के खत्म होने पे आ रहा है. 30 डिग्री की लियो है और उसमें 3 स्टार होते हैं, केतु, शुक्र, सूर्य. माघा, पूर्व फागुनी, उत्तर फागुनी. सो वीनस जो है उत्तर फागुनी में बैठा हुआ है, 28 डिग्री का है, मतलब राशि में खत्म होने की डिग्री पे है. लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसपे कि वीनस है, इस उत्तर फागुनी स्टार का जो लॉर्ड है वो सन है, तो वीनस सन के नक्षत्र में कहलाएगा. तो यहाँ पे हमने देखा कि वीनस सन लिखा हुआ है. अब सन इस कुंडली में कौन सा हाउस रूल कर रहा है. लियो इज फॉलिंग ऑन द 5th हाउस. जब वीनस का पीरियड शुरू होगा, जब वीनस की दशा, अंतर, प्रत्यंतर, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा कुछ भी आएगी, तो शुक्र जो है 5th हाउस का रिजल्ट पहले देगा. 5th हाउस किन किन चीज़ों के लिए डिनोट करता है, हमने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था. क्या क्या डिनोट करता है, एनीबडी प्लीज. सर चिल्ड्रंस education in that astro Vedic, but here it's denotes children's romance, fun, and many more other things. Healing, solution providing, product development, anything which we develop. This is the prime house of love affairs. This is the prime house of childbirth. This is the prime house of share market, success in stock market, betting, gambling. This is the prime house of acting, dancing, Acting music, also, dancing, music and yeah, and this is the prime house of also. mantra siddhi. But basically, na, nobody asks nowadays, because we are living in Kalyug. They don't want mantra siddhi. They want pinky siddhi. Sir, you are sir, someone who's having more prominent 5'9", they are more into that spirituality. So I'm having that. So I don't want to ask about the mantra siddhi because everyone is not at the same page right now. Yeah, no, no. So
मंत्र सिद्धि के लिए जनरली कोई पूछता नहीं है, बिकॉज लोग करते ही नहीं है। और बट ए गुड ट्रेंड वी आर seeing nowadays is that people are somewhat getting inclined towards doing, फाइंडिंग इनर पीस। परेशान हो के लाइफ में बहुत सारी चीजें कर करके, बहुत सारे धक्के खा खा के आदमी को अल्टीमेटली समझ में आता है कि जो कुछ है विच इज इनसाइड मी ओनली। सो फिर आदमी को लगता है कि मेरे को कोई गुरु मिल जाए, फिर उसको लगता है कि गुरु नहीं मिल रहा तो कोई मंत्र मिल जाए, या फिर कुछ मिल जाए ऐसा जिससे मैं कुछ जाप कर लूँ, ध्यान कर लूँ, जिससे कि मुझे इंटरनल पीस मिले, मेरा माइंड एक पर्टिकुलर मोशन में सेट हो जाए, रोज जो इधर भाग रहा है उधर भाग रहा है वो नहीं हो। बट सच पीपल आर वेरी लेस स्टिल। मोस्टली पीपल आस्क मेरा जो लव अफेयर है वो मैरिज में कन्वर्ट होगा कि नहीं, संतान कब होगी, शेयर मार्केट या गैम्बलिंग से मुझे पैसा मिलेगा कि नहीं, एक्टिंग करना चाहती हूँ तो मैं एक बड़ी एक्टर एक्ट्रेस बनूंगी कि नहीं। दीज आर द क्वेश्चंस रिलेटेड टू फिफ्थ हाउस विच आर आस्क्ड every second third day to all the practicing astrologers, whether they are doing astrology in a village or on an app. These are the regular questions. So अब वीनस क्या करेगा, सन के स्टार में है। जैसे वीनस की दशा शुरू होगी, सन रूल कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा फिफ्थ हाउस पे लियो आ रही है एंड सन फिफ्थ हाउस में बैठा है और वीनस भी फिफ्थ हाउस में है इस पर्टिकुलर चार्ट में। जैसे ही वीनस की दशा स्टार्ट होगी इस आदमी के अंदर, अचानक से, बिकॉज सन है तो सन विल नॉट गिव गैम्बलिंग, सन विल नॉट गिव addiction to music or all that, sun will not give addiction to drugs, sun will take him to mantra Temple. siddhi, something like that, because sun is a spiritual planet. This is how significations change. अगर यहाँ पे मार्स होता, this guy would have done so many love affairs in his time to come, and then he would have been doing all the bad things, because Mars and Venus, this combination is very very, in some houses it is not very good. So I am already also having the same combination Sun Venus. So fifth house in Sun makes me go to temple. वो planet के हिसाब, because of the nature of planet, see we have to mix up the result of the sign, result of the house, result of the planet. This is the three combinations which we have to come to judge a result of a house. The good thing in KP is you do not have to do it, you have to only answer a question. अगर हम किसी ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो कहेगा आप तो बहुत धार्मिक व्यक्ति हो, आप तो आगे चल के संत बनोगे, लेकिन आप उसके पास ये पूछने ही नहीं गए हो, आप तो पूछने गए हो भैया मेरी शादी कब होगी। तो so these answers are available only in any kind of stellar astrology, whether it is KP और जो भी इतने सारे नाम हम 2-3 दिन से ले रहे हैं। अब वो जो सन का रिजल्ट तो देगा फिफ्थ हाउस का, बट वो रिजल्ट उसके लिए कैसा रहेगा, विल Good, इट yeah. बी फ्रूटफुल फॉर हिम, विल इट नॉट बी फ्रूटफुल फॉर हिम, वी विल अगेन सी व्हाट इज इट, क्या रिजल्ट होगा इसका। सब लॉर्ड डिसाइड करेगा आई गेस। अब यहाँ पे हमने देखा वीनस का जो स्टार लॉर्ड है सन है, सब लॉर्ड मून है। मून क्या इस हॉरोस्कोप में मून बैठा है 11th हाउस में। दिस इज एक बाई चांस, ये क्योंकि मैंने टाइम चार्ट खोला है तो बाई चांस इस हॉरोस्कोप में वो मंत्र सिद्धि का कॉम्बिनेशन बना हुआ है कि 5-11 का। नाउ व्हाट इज सब लॉर्ड इन कृष्णा मूर्ति और एनी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी, यू विल ऑलवेज लिसन टू दिस टर्म सब लॉर्ड। सब लॉर्ड। सब लॉर्ड का स्टार लॉर्ड, सब लॉर्ड का एस्पेक्ट, सब लॉर्ड का स्पल, सब लॉर्ड फलाना ये ढिकाना ये। सो एज वी डिड, हमने ये देखा था कि एक साइन है ये 30 डिग्री का, इसमें 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और फिर बचा 3 डिग्री 20 मिनट, ये हिस्से हमने कर दिए। कृष्णामूर्ति जी ने क्या करा, इस 13 डिग्री 20 मिनट के भी 9 हिस्से कर दिए, जिससे क्या हुआ कि उनके प्रिडिक्शन में प्रिसाइसनेस आ गई। ओके। All the shray of this system goes to Mr. K.S. Krishnamurti, late K.S. Krishnamurti, who gave us this astonishing, amazingly correct system of prediction. इसमें किसी और का 1% भी लेना देना नहीं है। लोगों ने उसको पढ़ के खूब डेवलप भी करा और उसको खूब बर्बाद भी करा। आज भी पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, और अच्छा भी कर रहे हैं, बुरा भी कर रहे हैं। इस दुनिया में देयर आर ऑलवेज टू साइड्स ऑफ ए कॉइन। सो 13 डिग्री 20 मिनट का ये जो स्पैन है इसके भी हमने 9 हिस्से कर दिए। उन्होंने इस जो हिस्से करे इसके 9 हिस्से, उसका जो उन्होंने क्रम रखा
वो उन्होंने रखा विंशोत्तरी दशा के सिस्टम के हिसाब से। दशा में क्या होता है कि जब आपकी महादशा शुरू होती है तो सबसे पहले उसी की अंतर्दशा आती है, उसी का प्रत्यंतर आता है, उसी की प्राण दशा आती है, उसी की सूक्ष्म दशा आती है। इन द सेम वे जब हम एक पर्टिकुलर स्टार के 9 हिस्से करते हैं, एंड दीज, ये जो हिस्से होते हैं दे आर अनइक्वल, ये इक्वल हिस्से नहीं होते हैं। इनका जो बेस है दैट इज बेस्ड अपॉन द 120 ईयर्स ऑफ विंशोत्तरी दशा। एक जो 13 डिग्री 20 मिनट का डिवीजन कर दिया जाता है 120 से, और उसके जो 9वें हिस्से में कितने डिग्री का उसको प्लानिट को फल मिलेगा, स्पेस मिलेगा। वो पर्टिकुलर स्पेस का जो रूलर है दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज सबलॉर्ड। सो हियर वीनस का जो सबलॉर्ड मून है, व्हाट डज इट मीन कि वीनस जो बैठा हुआ है सन के स्टार में है, सिंह राशि में, और उसका जो वो एक ऐसे पर्टिकुलर पोजीशन पे है जहाँ पे कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो स्टार लॉर्ड तो सन है, लेकिन वो जो 9 हिस्से हुए थे उसमें जो हिस्सा आ रहा है वो चंद्रमा का हिस्सा आ रहा है, वो छोटा सा हिस्सा। दिस इज सबलॉर्ड इन वेरी वेरी सिंपल टर्म्स। 9 डिवीजन ऑफ 13 डिग्री 20 मिनट विद रेफरेंस टू विंशोत्तरी दशा सिस्टम। सब लॉर्ड के बिना कोई भी स्टेलर एस्ट्रोलॉजी नहीं होती, चाहे वो कोई सी भी हो। सभी लोग इसी को करते हैं। एवरी ईच एंड एवरी केपी एस्ट्रोलॉजर और CIL, KCIL, EPS, नाड़ी, फलाना ढिमकाना, everything will use this only, saying that they have invented it, which is false. It is only Mr. K.S. Krishnamurti who has given this system to इंडियन और जो भी लर्न करते हैं एस्ट्रोलॉजी को। सो ये सबलॉर्ड होता है, और इस सबलॉर्ड से ही डिसाइड होता है कि वेदर द रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव। नाउ फॉर एग्जांपल, ये मून यहाँ पे 11th हाउस में बैठा हुआ है, अगर यही मून 8th हाउस में होता तो इस व्यक्ति की जो साधना है वो कभी पूरी नहीं होती। वो प्रयास करता लेकिन उसको कुछ बाधा आ जाती, उसके पास कोई ऑब्स्टिकल आ जाता। जब भी वो मंत्र साधना करने बैठेगा उसकी गर्लफ्रेंड फोन कर देगी, कैसे हो, कहाँ हो, यहाँ वो पिक्चर दिखाने चलो। सो या आज हम KFC में जाएंगे, खाना खाएंगे, या तागर रत्ना में जाएंगे, डोसा खाएंगे, तो वो साधना नहीं कर पाएगा, बिकॉज सब लॉर्ड इज नॉट परमिटिंग इट। द सेम वे सब लॉर्ड विल गिव एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स फॉर ए साधक अगर ये 12th हाउस में चला गया। 12th हाउस इज द हाउस ऑफ फिनांस, मोक्ष। 11th हाउस में बैठा है, उस आदमी को मंत्र सिद्धि हो जाएगी, ही विल फील द काइंड ऑफ अटैचमेंट विद द मंत्र एंड द वाइब्रेशंस। बट अगर वो 12th में चला गया तो वो 1 स्टेप अहेड चला जाएगा। कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए 12th हाउस इज वेरी पॉजिटिव। अटेनिंग मोक्षा इज वन ऑफ देम। द थिंग इज वी कैन नॉट सी इट हैपनिंग, we have to die for it, or you have to die for it to see whether we have attained the moksha or not. But initial ancient astrology, these are the principles given by our sages, even in Parashar Hora Shastra, even in Jatak Nirnay, in each and every, in the Kalidas astrology also, in every astrology it is written that 12th house is the house of moksha. But it requires very very strong combination in horoscope. सो ऑन द फर्स्ट डे आई वॉज टेलिंग कि हम जब गांव के एस्ट्रोलॉजर होते हैं, आज भी आप उनके पास जाइए, दे विल गिव यू सच एस्टोनिशिंग प्रोडिक्शंस कि इंडिया या पूरी दुनिया में बैठा बड़े से बड़ा महंगे से महंगा एस्ट्रोलॉजर भी नहीं दे पाता। बिकॉज दे हैड दिस फ्रॉम देयर लीनियज, फ्रॉम देयर फैमिली, देयर फोर फादर्स वर डूइंग दिस, इट केम इन द फैमिली, और वो उन्होंने कभी किसी को दी नहीं। बट एनीवेज वी हैव KP, so we can answer each and every question. Many times it will go wrong, but usually it goes correct. No astrologer is God, so never ever expect a astrologer to always be correct at all the times. It is impossible. Only God can be correct. That's it. So Guru, God, these are the two people जिनके लिए एस्ट्रोलॉजर को हमेशा प्रे करते रहना चाहिए, और उनके लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड रखना चाहिए, हमेशा हम्बल होना चाहिए और सॉफ्ट होना चाहिए। So, did you understood what is sublord? यस सर, हो गया क्लियर। Anybody who did not understood, so many people are here. No, Sonia is there, Gitika is there, Gaurav Sharan is there, Chogle Sahab is there, Lubomir is here, Swati is here. So किसको समझ में नहीं आया सब लॉट?
Clear. Geetika को समझ में आ गया. Good. So Geetika, have you done this before? Yes. Gauravji, you have studied KP before? Yes, sir. Great, great. I'm doing practice nowadays. When Arey, you very sent me good, very link, good. when you sent me link, I thought, okay, let me go through this brush up once again. Yeah, yeah, yeah. It gives, refreshes the old days. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. So, anybody else who understood what I said in last 3 days? I Gunjan, got, yes, little bit. okay. I'm a real beginner. Okay, so Gaurav Sharanji is a KP astrologer. Mayur is reading KP astrology, so he knows. So we are not concerned with this too because they are already doing it. Anybody and Gunjanji has understood it little bit. Chogule Yeah, with this, Yes. आपकी आवाज नहीं आई. Lubomir has understood. Yes, I understand. That's so great. Thank you, sir. Thank you for everything. Right, right. Thank you. Thank you very much for joining. So now we have come to the end of this 3 days basic course. And I don't know, I mean, I really believe, I really hope that every one of you should understand. Now, what you can do is I will give you some references of books. If you really want to learn KP, you can also join my course, complete course, or you can refer the books, just like Mayur is doing, he is reading books. It is very, very easy. You can read and learn. But my request is do not watch YouTube videos which are on KP astrology because every other KP astrologer is saying different things. And they are confusing people because मेरे जो भी student है मैं जब सिखाना शुरू करता हूँ when I start teaching they start watching YouTube, they come back and then after some days they understand that it is all not good. With the last leg it was more clear. Oh, that's great. And the only one part, like we have to see the sublord, where in which planet it is. That planet is lying in which place, in which house, and then you are predicting it. yes, first of all we took the star lord of the planet. Planet will give the result of the star lord. Will that result be good or bad? It will be decided by the sublord. Simple. Yes. This I is understand. astrology. Thanks a lot. Sonia ji, did you understood? No. Yasharth, they all have voice muted. I don't know. Swati is in some travel. She's in bus or train, I believe. So, anyways, thanks for joining. If you want to learn this, there is a book. There are 6 KP readers. Buy from Amazon, buy from Flipkart, or go to Chennai, buy from the shop of son of Krishnamurti ji. These 6 readers are the core pillars of Krishnamurti Paddhati. If you want to learn them as a professional, you can read them and learn, do lot of practice, or you can join my course also, which I am teaching, taking online classes. If you want the details, I'll share you in your WhatsApp, whoever wants to learn. And now, Sonia ji, yes, go through the recording. It will be very, very clear. Sir, may I ask you something? Yeah, please. Do you have these books in PDF format? You can find them Or on box Scribd. format? You will get this book on Scribd. Okay, thank you. Also, there is a site called archive.org. You will get them on archive.org also. Thanks. Thank you. Yeah. In archive.org. Sir, are you talking about this KP volume 6, the reader, that 6-volume book? Yeah. Okay, I'm already having one. Like I am having the PDF with me. So you can share with him because we Yeah. are all in the group. So whoever Yeah. is having the PDF, they can share with the group members. Yeah, sure.
right? Like I'm already having that link, so I will share the link. Yeah, you share the link in the group, they can download. Okay, sure. Thank you. Anybody else having any query, question? Sir, I would like to say something. Yes. Sorry for the disturbance because I'm out somewhere. Yes, yes. Yeah, actually, when I started learning KP 2-3 months back, I had some queries and doubts. But when I started watching your videos, like all my queries were solved. And I got the confidence, and I'm also into consultation, and it really helped me a lot. And please keep making those videos with real life examples. It really helps. Oh, you are also doing KP astrology? Yeah, sir. And after watching your videos only, I got the confidence in like predicting something. Arey, it is very easy. If we do practice, we can do anything. I mean, there is no limit to human capacity. आप कर रही हैं, and So, best of luck for your career. अभी कहाँ पे करती हैं आप? I'm in Delhi. Okay, you are doing it from your home without any app, or you are on some app also? No, I'm not in any apps. Online consultations I used to do. To get And more sir, please experience. recommend the books names. जी बोलिए. The books का please reference कीजिएगा कौन सी books पढ़नी है. हाँ, वो मयूर ना ग्रुप में भी एक लिंक डाल देंगे, सो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम देयर. केपी के जो 6 रीडर्स हैं, वो सुरेश सासने जी की किताब है वो. और अगर आपको मराठी आती है तो ज्योतिन हसबे की किताब आप ले सकती हैं. नहीं सर मराठी नहीं आती है. कोई बात नहीं. And तो the main reason I started watching your videos like because of you have a Neem Karoli Babaji's photo behind you, and because of him only I thought why not to watch your videos, and it really helped me. Thank you so much for that, and I thanks Maharaj ji also for this. महाराज जी इज एवरीवेयर. Yeah. थैंक यू फॉर योर So काइंड वर्ड्स. please थैंक यू. keep making those real life examples. Yeah, we can learn only by real life examples. No, today also I will make a video on when one can purchase a car. आज या कल I was just writing 2-3 horoscopes. Anybody else having a question? Any doubt? No, then we should wind up now. And it was really nice talking to you. I'm seeing you all muted and talking at very low frequencies from time to time. सर एक लास्ट क्वेश्चन सर, जो आपने बताया था वो सुभाष जी की, क्या नाम है, आपने थोड़ा नाम बता देंगे? सुरेश सास ने. हाँ, सुरेश जी की, जो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था बुक के लिए, हम्म. तो उन्होंने मुझे बताया था कि बुक जो है उनकी मराठी में ही है आई गेस, और अभी हिंदी का रीडर शायद अभी आया नहीं है, या फिर नया रीडर वो टाइम लगेगा, कुछ दिसंबर तक बोल रहे थे. तो मैंने उनसे कांटेक्ट किया था, तो वो वही बता रहे थे कि अभी जैसे आपने मुझे इनसे पूछा कि मराठी आती है तो आप कर सकते हो, तो मेरे को भी वही इशू है कि हमको मराठी नहीं आती है. तो वो उनका बुक जो है अभी वो हिंदी में आई गेस वो प्रिंट होगा, उसके बाद वो बताएंगे, उन्होंने बोला. अभी तो उनका दूसरी बुक आने वाली है. वो मेरे को बोल रहे थे कि भेजेंगे मेरे को. अच्छा. बट और वहां एक्चुअली पे ना जो आई टेल यू, मैं आपको एक मजेदार चीज बताता हूँ. इन 2007 when I started relearning, I was doing this traditional astrology from 2000. As I told on the first day that I used to do it on Yahoo groups. Initially, I used to do a lot of numerology, and it used to be very correct. Then I used to do palmistry. That was amazingly correct. I gave people so many predictions that they used to get literally astounded. But that was my 12th class. Then my parents wanted me to study, so I did MBA, worked here, there, all those things I did. But this astrology came back to me. I am born in Sadbisa, second quarter. Such a person always becomes an astrologer only. So I can't help it. So द सेम विथ मी. really, सर मेरे घर वाले भी सपोर्ट नहीं करते हो, तो छुप छुप के करना पड़ता है. okay. So
Yeah, so a person born in the constellation second quarter in Sadbisha second quarter, somehow he becomes an astrologer and a tantric and all that. So leave the two words, leave those 2 words. We'll stick to astrology. So this astrology came back to me in 2007 when a very good friend of mine, he was a very good KP astrologer. He gave me the photocopy of this book, Suresh Sasne's book, because that book was not available in the market at that time and people used to get it photocopied. So I also did the photocopy of the photocopy and I started studying it and I found it so interesting that I used to wake up at 3 a.m. and I used to keep studying. And when I after reading this, then I read KP readers. Otherwise, अगर कोई initially KP readers पढ़ेगा, it will be very difficult to understand what he is saying. But by the grace of Maharaj ji, थोड़ा बहुत prediction आ गया and today I am also giving the knowledge to others. This is all His grace. Everything is by Him. So let us say bye and please share the link in the group. ऑलरेडी रीड हाँ, तो वो असल में ना सुरेश सासने's book is not available in script. I tried searching for it. यस यस नहीं नहीं सर, वो पीडीएफ में अवेलेबल नहीं है। नहीं अवेलेबल और वो नहीं करेंगे नहीं करना भी नहीं चाहिए यार बिकॉज दैट गाय हाँ गेव सर हिज वो सेल्फलेस नॉलेज टू ईच एंड एवरीबडी यू नो ज्योतिन्द्र हसबे हु वाज द गुरु ऑफ सुरेश सासने फॉर 12 years 12 constant years he never took a single paisa from anybody just to gain knowledge. These were that kind of people. He was a chain smoker so he died early but his knowledge is with us and he is our at least my guru's guru and KSK is everybody's guru. सर बट आज के टाइम पे अगर आप चार्ज नहीं करो तो वो आपको बहुत लाइटली लेते हैं। No, no, it's not the question of being taken lightly. Those times were different. That is a fact. Nowadays, people will think you are a fool until unless you are not charging 50,000 rupees per horoscope. So, yeah. So, which is, people are doing and people are paying. So, Sir, I became a fan of yours when you like I saw a video of you somewhere कि आप कुत्ते को रोटी खिलाओगे, भैंस को खिलाओ, उसको भी खिलाओ, अगर आपकी हॉरोस्कोप में नहीं है पैसा तो नहीं आएगा। आई बिकेम दैट फैन फ्रॉम दैट ओनली। मैंने शायद वो वीडियो आपका 2-3 साल 4 साल 3 साल चल रहा देखा था, तो तब वो मेरे को बात लगी। और मेरा और मैं तो अभी केपी तो मैंने समझ लीजिए मैंने अभी 2015 2025 के जनवरी में ही स्टार्ट किया मैंने रीडिंग करना। okay. तो अभी एक 8 मंथ्स ही हुए होंगे मुझे रीड करने, मतलब मैं कंटिन्यू भी नहीं हूँ लेकिन हाँ ठीक है। बट वही मैं तब से मैं आपका फ़ैन था और मैंने आपसे एक बार क्वेरी भी किया था कि इंक्वायर किया था कि मुझे आपका कोर्स ज्वाइन करना है, बट ड्यू टू सम पर्सनल रीज़न मैं ज्वाइन नहीं कर पाया था। Okay, okay. अच्छा। तो मैं तब से ही आपका फ़ैन था और मेन जो आपका मेरे को वो वीडियो लगा था कि आप चाहे कुत्ते को रोटी खिलाओ चाहे गाय को खिला दो, अगर पैसा नहीं है नहीं लिखा है तो नहीं आएगा। But that is the fact. Now, people don't हाँ understand this. हाँ सर। Krishnamurti's rule is if there is something is not destined in your life, it is not going to happen. With one clause. There is one clause. Only by the grace of a Siddha Purush, that thing will come then to you you, can otherwise not. no. So, having a grace of a Siddha Purush in life itself is a miracle. Nowadays, those who are calling themselves Siddhas are basically quacks. So, सर it is एक और better to जैसे not have their grace. सर जैसे ये टाइमिंग का इशू रहता है किसी किसी को, तो किसी के टाइमिंग के इशू कारण इसको लगता है कि बहुत पैसा आने वाला है, बट एक्चुअल में वो होता नहीं है, तो वो टाइमिंग का इशू का क्या फिर होता है रोल? Like, for example, लाइक जैसे सपोज किसी हॉरोस्कोप में दिख रहा है कि इसके पास बहुत पैसा आने वाला है या बहुत पैसा होना चाहिए, बट वो पर्सन के पास है नहीं। it is because of Dashabhukti Antar. हाँ हो सकता है, बट अगर हो सकता है उसका टाइमिंग के कारण वो जो पोजिशंस ऑफ प्लैनेट्स हैं वो भी चेंज हो सकती है। हाँ 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 वो तो सबसे बड़ा फैक्टर है ना तो वो because क्योंकि the केपी, cuspal sublord will change within 1 or 2 minutes. हाँ तो केपी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपका जो बीटीआर है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। Yes, BTR is very important and the other thing is BTR का भी ऐसा मजाक बना के रखा है लोगों ने कि पहले अपनी शादी की डेट बताओ फिर अपनी ये बताओ फिर अपनी वो बताओ which is not at all required. Krishnamurti ji never asked. Suresh Sasne never asked. Jyotin husband never asked कि tell me when you got married, tell me when you got married, what did you studied, when was your child born, when did you purchase your car, blah 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 all that. But because I also have to ask so that people because everybody is coming to you after watching Instagram reels, YouTube, and nonsense on Facebook. So you have to ask the same questions although they are not useful.
but they tally. I always follow the dictum given by Suresh Sasne that do not see any chart at all until unless you feel like doing it. Then only you will be able to get to the point. Otherwise not. एंड सर ये भी क्या सच है कि लाइक किसी किसी का हॉरोस्कोप ऐसा भी रहता है कि मतलब आप देखते हैं लेकिन आप सोचते हैं कि इसको कुछ नहीं बोलना है, मतलब कोई लोग कोई ऐसा बोल देते हैं कि हम इस चीज पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। See, if you are ऐसा भी saying होता है। death of a person, then it is better not to say. बाकी तो सब मतलब होता ही है नाउ आजकल आके आदमी पूछता ही क्या है, शादी कब होगी, बच्चे कब होंगे, लव मैरिज होगी कि नहीं, वो छोड़ के भाग गई है तो कब फोन करेगी, या भाग गया है तो कब फोन करेगा, वो दीज आर द यूजुअल क्वेश्चंस। या फिर मैं घर बेचने का सोच रहा हूँ तो मैं कब बेचूं जब मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट हो, या मैं कब गाड़ी लूं, या फिर मेरा कोर्ट केस चल रहा है, दीज आर द डे टू डे क्वेश्चंस विच वी कम अक्रॉस ना। बट इफ यू आर सेइंग मतलब अनफॉर्चुनेटली मेरे डेथ प्रोडिक्शंस ना हमेशा सही हो जाते हैं, तो मैं, लेकिन होता क्या है ना कि वो पीपल कम ओनली व्हेन समबडी इज इन आईसीयू। अभी 2 दिन पहले ही लाइक माय फ्रेंड शी वाज इन यूएस, शी कॉल्ड, मेरी मम्मी सीरियस है इंदौर में, एंड आई गॉट दिस फीलिंग कि गई, लेकिन आई सेड कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, और आई सेड बट टुडे आई सॉ स्टेटस नो कि शव यात्रा एंड ऑल दैट, so it is really very bad, I mean, अब Sir, जनरली I क्या have होता a है। question. जी, प्लीज प्लीज बोलिए। Sir, if Bhukti is placed Dasha planet, then भुक्ति, will we check according to the Jupiter or will check according to the star lords or the sub lords? if Bhukti Lord is placed in, 12 from the Dasha planet. okay, 12 from the Dasha, very good question. So we have to see not the Bhukti planet, we have to see the star lord and sublord. If the sublord of that planet is placed 6 at 12 from the sublord of the Dasha lord, then it will create problems. Because by default the rule is that 6 at 12 are problematic houses. The Okay. basic rule of KP is that planet will give the result of star lord, right? First rule. Now, if suppose Saturn Dasha is running, Mars Antra is there and Venus Pratantra is there. Saturn is placed in the first house, Mars is placed in the 12th, Venus is placed in the 6th house. So Venus is 7th from Mars and 6th from Saturn. But when their period will operate, they will not decide. Na? Their star lord will decide how they are going to give result. And the sublord will decide how that result is going to be. So we have to combine basically all these three things together to ultimately come to a conclusion whether this thing is going to happen or not. But if that thing is promised in the horoscope, generally it takes place, if all these three are significators. Okay, sir. वो 66-12 का फंडा एकदम सही है, एंड इट इज एप्लीकेबल, बहुत बार देखा होते हुए, होता ही है, मतलब वो देखा क्या, इट इज अ फैक्ट। बट उसको देखने का तरीका ये नहीं है कि हम प्लैनेट टू प्लैनेट देखें, बिकॉज प्लैनेट तो अपना रिजल्ट दे ही नहीं रहा है ना, प्लैनेट विल गिव द रिजल्ट ऑफ इट स्टार लॉर्ड। दिस इज हाउ यू हैव टू गो, आई बिलीव, आई मीन ऐसा करना चाहिए, देखना चाहिए। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड इंडीड। And sir, if the planets are giving the dominant result of 5-9, 5, 6th house and 9th house, then उसके लिए हम उस टाइम पे हम प्रोफेशन के लिए क्या बोल सकते हैं कि See, कैसा 5 पीरियड and 9 है? are loss of job or change in JDKRA. So if 5, For 9 the are very prominent, then the person will change his job or lose his job. If 6th is coming along, then he will change his job. sir, for the whole the भुक्ति पीरियड वो उसका लॉस ही रहेगा। बिल्कुल, जैसे सपोज करिए शनि की दशा चल रही है, ठीक है, अब ना शनि की दशा तो बहुत लंबी है, तो वो रोज रोज तो जॉब चेंज करेगा नहीं। उसकी दशा में जो अंतर लॉर्ड आएगा, दैट अंतर लॉर्ड विल सिग्निफाई नेगेटिव हाउसेस एंड पॉजिटिव हाउसेस, और इट कैन सिग्निफाई ओनली नेगेटिव हाउसेस। दैट विल ऑल्सो नॉट मेक दैट पर्सन लूज हिज जॉब। जो प्रत्यंतर लॉर्ड होगा विच इज मोर पेनिट्रेटिव, अगर वो प्रत्यंतर लॉर्ड भी 5, 9 या 12, 8 दिखा रहा है, तो इन दैट कंजॉइंट पीरियड द पर्सन इज गोइंग टू लूज हिज जॉब।
बट होता यह है कि एट ए पर्टिकुलर गिवन पॉइंट ऑफ टाइम each and every planet will have a rulership of two houses. So if one house is bad, the other will be good. So this is why people keep changing jobs. Otherwise, आदमी की जॉब छूटती तो जिंदगी में दोबारा मिलती ही नहीं, बट उनको मिल जाती है. नाउ आई हैव सीन केसेस वेयर 4-4 साल तक जॉब नहीं मिली. सो बिकॉज वो कस्पल चार्ट में वो जो हाउस की रूलरशिप है वो इतनी खराब है कि उसकी दशा आ गई. बट यूएस से छोड़ के इंडिया आ गए, यहाँ आके भी उनके घर बिक गया, कुछ हो नहीं पा रहा. बट देन सडनली जैसे पीरियड चेंज आ हुआ, रहा भैया आ रहा है. suddenly he got his job, he went back, did everything. So everything depends upon, मतलब सबको मिला के देखना है. सर एक क्वेश्चन मेरा भी था सर. Yes, yes. केतु सेकंड फ्रॉम सैटर्न, मतलब सैटर्न से दूसरा पोजीशन केतु है, तो दिस इज कंसीडर्ड द ब्रेक इन प्रोफेशन. लाइक Explain. केतु सैटर्न हैविंग 212. Okay, okay, okay. केतु की दशा है, सैटर्न का अंतर है. सैटर्न इज इन द 12th हाउस टू केतु. हाँ. हम्म. नहीं, अगर प्रोफेशनल वैसे भी अगर अपन देखें केपी चार्ट में सैटर्न का पोजीशन है जो वो है केतु से 12th, हम्म. तो 212 हो गया. बट व्हाट हाउसेज दे क्योंकि सिग्निफाई? सैटर्न 212 तो हो गए, वो ठीक है. बट व्हाट आर द हाउसेज दे आर हाँ, सिग्निफाइंग? लेकिन सेकंड हाउस बोथ आर सिग्निफाइंग सेकंड केतु इज हाउस. इन सेकंड हाउस. No, Ketu is in second house, and Saturn is in first house. But what are their star lords? Then, but what I am trying to say is that does it mean that the person will having that break in profession? Like we No, usually second house is Ketu not the shows loss of break. job now. Second house is not the house of loss of job. What will happen is in that particular period, he will have some dispute with some kind of family members, most likely father, mother, chacha, mama, tau, phupa, all those. Or maybe he will refuse some kind of bribe कि वो पैसे नहीं चाहिए मेरे को, और he will develop some kind of infection in throat or some acne on face. Okay. But it cannot, Sir, a person cannot lose a job until unless 5-9 is signified. sir, can we like differentiate like what kind of profession a person can go through? Like can choose like अगर 10th कस्पल सबलॉट अगर मार्स है तो वो शो करता है कि लैंड एंड प्रॉपर्टीज रिलेटेड हो सकता है. बट अगर वो अनटेनेटेड प्लेनेट बनता है तो देन वो प्रोफेशन का जो डिफरेंशिएट है कि अगर आप जैसे वीनस केतु होता है तो आप वीनस में क्लॉथिंग बिजनेस आ जाता है, लेकिन जब केतु आया था तो वो कट वाला बिजनेस आया था, राइट? तो आप ऐसे मटेरियल्स और ऐसे क्लॉथिंग में जाते हैं जिस जहाँ पे कटिंग का ज्यादा रहता है. और उसी तरह अगर वीनस राहु आता है तो आप रेडीमेड पे जाते हैं. तो क्या केपी भी वो इतना डिफरेंशिएट कर सकता है? ये आपने कहाँ पे पढ़ा, खुल्लर में? नहीं, कूलर में नहीं पढ़ा. क्या मैं एक कॉल आ नहीं, गया था मैंने एक्चुअली, कूलर आई में नहीं कुडंट पढ़ा. हियर यू प्रॉपर्ली. वीनस अगर मार्स के साथ हो तो? वीनस अगर राहु के साथ होता है तो यूजली वीनस शोज क्लॉथिंग बिजनेस, राइट? एंड राहु शोज एक्सपांशन, सडन एक्सपांशन. ओके, समथिंग विच इज लाइक मोर ब्यूटीफुल इन थिंग्स. तो वीनस राहु वी कैन से दैट पर्सन कैन गो फॉर क्लॉथिंग, रेडीमेड क्लॉथिंग बिजनेस, राइट? बट अगर वहीं वीनस केतु अटैच हो जाता है तो देन वी कैन से द पर्सन विल गो फॉर क्लॉथिंग, बट केतु शोज कटिंग. तो द ऐसा क्लॉथिंग जिसमें कटिंग का यूज होता है. सी, Venus shows many things. Clothing is one of it. The conjunction of Venus Rahu will tell many things depending upon in which sign they are placed. What are the aspects coming to Rahu and Venus? What are the star lord of and sublord of Rahu? As far as Rahu is concerned, we have to see the sublord of Rahu all the time, star lord and sublord, so सर that तो मेरा जो वही table है. क्वेश्चन था, सॉरी इंटरप्ट किया. तो क्या हम लोग 10th कस्पल सबलॉट को देख के हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि पर्सन का पर्टिकुलर प्रोफेशन क्या होगा, लाइक Yes, yes. स्पेसिफिक प्रोफेशन कोई See, the कर problem सकता? is, yes, Krishnamurti used to tell people that you will become a tailor, you will become a barber. Both are हाँ, using वही solutions. वही. Why become a tailor and why तो become a ये barber? So वो एक जो कस्पल, वो उसमें एक टेबल लिया हुआ है केपी रीडर में ना. अच्छा. What he has done is he had made an entire table who will do what. The problem with the table is it has become outdated because nowadays people are dancing on TikTok wearing and making money. So
तो वही, वो डिफरेंशिएट कैसे पता करते हैं वो आप थोड़ा सा उस पर बताएंगे कि किस वो तरह पूरा से का पूरा मतलब। एक टेबल है, वो केपी रीडर में दिया हुआ है, सुरेश सासने की बुक में दिया है पूरा। अच्छा सो दिस इज वाई टेंथ का, एंड इट इज सो एक्यूरेट। आप देखो बस, टेंथ कस्पल सबलॉट जो है वो कितने डिग्री पे है, वो जो 1 से 249 का टेबल है, वो सबलॉट टेबल, उसमें वो कौन से नंबर पे आ रहा है, उस नंबर पे क्या क्या प्रोफेशन है, अच्छा आपको ऐसे आदमी उन्हीं में से कुछ करता हुआ मिलेगा। तो मैंने उनका जो एक जो नक्षत्र चितमणि जी हैं, जो जो उनका वो एक सी टेबल आर है। भट्ट, सी आर भट्ट, नक्षत्र चिंतामणि। हाँ तो इट इज द उनका मैं, सेम थिंग। अच्छा वो तो मैंने उनका टेबल देखा था, बट वहाँ प्रोफेशंस का कहीं मेंशन नहीं था। सुरेश सासने में प्रोफेशन पूरा है। अब वो सुरेश शास्त्री जी से मैं बोल, उनसे मैंने कांटेक्ट हुआ था, मैंने उनको किया, और वहाँ पे भी आप उनकी वेबसाइट पे भी आपका ही है कि आपको अगर केपी एस्ट्रोलॉजी लर्न करना है तो आप इस पे क्लिक किए तो वो आपका ही डिटेक्ट करता था। मैंने वहीं से आपका नंबर भी मेरे को वहीं से ऐसा हुआ था। अरे कौन सी वेबसाइट, आई डोंट नो, प्लीज टेल मी। अरे सर ये मतलब मैं उनकी शायद वेबसाइट पे विजिट किया था सुरेश जी की, तो वहां पे आपका नंबर मेंशन था। तो वहां से भी नहीं, मतलब आई डोंट नो भाई, एक दो मिनट केपी बस टेल मी। एस्ट्रोलॉ दो केपी एस्ट्रोलॉजर मेंशन थे कि आपको लर्न करना है, तो एक में आपका नाम था और एक में और किसी व्हाट का इज द नाम। यूआरएल ऑफ द साइट? सर आई डोंट रिमेम्बर, मैंने बहुत टाइम पहले निकाला था, मैं एक बार फिर भी देख लेता हूँ। सर वो जो उनकी बुक थी ना, तो वहां पे जो उनका वो था, क्या बोलते, तो वहां पे भी उनका आपका नंबर और वहां पे दो जनों का मेंशन था। आप सर उनकी सीधे सीधे वो सर्च कीजिए ना उनके नाम से उनकी बुक के लिए, सुरेश, हाँ नहीं। बुक तो ये है मेरे पास, इसमें तो चलो एनीवे, अच्छा है, इफ दे हैव डन इट हाँ सो इट इज गुड, आई मीन चलो, नहीं, क्योंकि मैंने सचिन चेक या किया था संदीप तो। किसी ने डाला होगा, उनके हाँ बेटे हाँ है ना वही। दो, एक हाँ मेरी बेटी है उनसे संदीप। बात हुई थी तो उन्होंने मुझे, हाँ हाँ, तो मेरी उनसे बात हुई थी तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप इनका भी, इनसे भी कर सकते हो और इनसे भी कर सकते हो, जब मैं ऐसे जैसे गुरु ढूंढ रहा था। ओके ओके, तो उन्होंने मुझे आपका भी रेफरेंस दिया था और उनका भी रेफरेंस दिया था। फाइन फाइन। सो आर वी डन नाउ? किसी को और कोई क्वेश्चन? बिकॉज इसके बाद सोनिया मे बी आस्क अबाउट ऑल दिस, आई एम गोइंग टू 49 guru in first house, I am religious upbringing. Sonia ji want to do mantra sadhana. Okay, Sonia ji want to do mantra sadhana, and we have to see recording. Yashat Chogle ji, Sonia ji. Okay, I'll share you the recording. every ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। आज कल वाली डाउनलोड कर ली सबने? Did everyone download it? I will share the name of the book and photo of the book in the सर group. जो मैंने डाली वो सही है क्या? आपने क्या डाली? मैंने वो पीडीएफ शेयर कर दिया है जो आपने बोला था ना मैंने बुक ग्रुप का। में अभी सर, व्हाट्सएप नहीं देखा मैंने अभी। अच्छा आप देख लीजिएगा, अगर सही हो तो बताइएगा। नहीं, वो केपी रीडर्स है, उसमें तो सही है, और क्या। हाँ सर वो केपी रीडर्स ही है, बस मतलब मैं एक बार फिर भी। तो सर ये है वो बुक। ये केपी की नहीं है, ये तो उनकी है। सीधा नेम शायद गणपति की होगी, नहीं तो हरिहरन की होगी ये। नहीं के सुब्रमण्यम लिखा हुआ है। सुब्रमण्यम इज द अदर सन ऑफ KSK. He had three sons, अच्छा Ganpati, ठीक है। Hariharan, Subramanyam. Yeah, हाँ this is not KP. I mean, these are son of KP only. जो भी इनके पास है कृष्णामूर्ति जी से ही है. But reading ओके Krishnamurti is a very different thing. I have his books. Hariharan, Subramanyam. He has written a very good book called Sublord Speaks in 3 volumes. ओके, ये के बी सुब्रमण्यम ही लिखा हुआ है इस पे। हाँ, Subramanyam is son of Krishnamurti जी. तो ये नहीं सही है क्या? No, no, it's okay. I mean, it's fine. मतलब 6 वॉल्यूम है इसमें भी? See, they are very, very good books. And they have given articles of KSK also. So go read them. I mean, it's fine. तो जो आप बुक बोल रहे हैं वो स्क्रिबल पे अवेलेबल है क्या? स्क्रिप्ट पे होगी, हाँ। 6 रीडर्स ऑफ KP शुड बी अवेलेबल। 6 रीडर्स ऑफ स्क्रिप्ट के पे पी नहीं है? तो archive.org पे ढूंढना मिल जाएगी। हाँ। So yes, it is now 9:30 and I will now take your leave. Anybody wants to join my KP course, please give me a message, and thanks for joining. This was not intentionally done to get some students, but I just wanted to meet people who are into KP and want to learn KP. So thank you very, very much and stay blessed. महाराज जी सभी पे अच्छा करें, कृपा करें। महाराज जी bless all. चलो, take care.
Thank you, sir. Thank you. Bye bye. Bye. Thank you, sir. Thank you Thank so much. you.